Good morning, student. Today we are going to start integration. Let f be a differentiable function. Let f be a differentiable function in interval I. So I interval में f is a differentiable function. Therefore f dash exists at each point of I. Because it is differentiable in I, so f dash exists at each point of interval I. Now question is, if f dash is known in at each point of I, हमें f dash की वैल्यू each point of I पे पता है, then can we find f? Then can we find f? And the process of finding f will be known as integration. So let us proceed further. You can call integration as the reverse process of differentiation. In layman language, you can say integration is the reverse process of differentiation. D by dx of x cube is 3x square. Suppose x cube is not known to me and we are given that derivative of some function is 3x square and we have to find that function. Here we know that 3x square is the derivative of x cube. So I will say integral of 3x square with respect to x, this is the symbol of integration. Integration of 3x square with respect to x is x cube. Now here d by dx of x cube plus 1 is also this 3x square. 3x square x cube plus 1 का भी डेरिवेटिव है. तो what I will say, integration of 3x square with respect to x is x cube plus 1 also. In general, d by dx of x cube plus any constant will be 3x square. So when I say integral of 3x square dx, integral of 3x square means that function whose derivative is 3x square. 3x square का इंटीग्रेशन निकालने का मतलब है कि वो फंक्शन निकालो जिसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आएगा. तो 3x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव आएगा? केवल x क्यूब का नहीं आएगा, x क्यूब प्लस c. दिस c इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. हेयर c इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. Let us take one more example. D by dx of sin x is cos x. sin x का डेरिवेटिव cos x है. तो हमें अगर डेरिवेटिव पता है cos x का और फंक्शन निकालना है, तो ये तो हमें प्रीवियस नॉलेज से पता है कि cos x किसका डेरिवेटिव है? sin x का. cos x इज डेरिवेटिव ऑफ sin x. तो cos x, इंटीग्रल ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब हम cos x का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, व्हेन वी आर फाइंडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ cos x, दैट मीन्स वी आर सर्चिंग ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज cos x. तो cos x का इंटीग्रेशन निकालने का मतलब है cos x किसका डेरिवेटिव है. तो हमें पता है cos x sin x का डेरिवेटिव है, और sin x ही नहीं, sin x प्लस any constant, as d by dx of not only sin x but sin x plus any constant is cos x. तो sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो हम कहेंगे cos x का इंटीग्रेशन sin x है. Similarly, d by dx of e की पावर x is e की पावर x. e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन निकालने का मीनिंग क्या है? What is the meaning of finding integration of e की power x?
मीन्स वी हैव टू फाइंड दैट फंक्शन उस डेरिवेटिव इज ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स किसका डेरिवेटिव है? ई की पावर एक्स प्लस एनी कांस्टेंट। Now let us write few more example. D by dx of sin inverse x is 1 upon root 1 minus x square. Derivative of sin inverse x plus any constant will be this. So suppose this is not known to me. I have given that a function whose derivative is 1 upon root 1 minus x square. Given a function whose derivative is 1 upon root 1 minus x square, our aim is to find that function. So integral of 1 upon root 1 minus x square, we know with respect to x, it is the derivative of sin inverse x. तो 1 upon root 1 minus x square किसका derivative है? sin inverse x and of course sin inverse x plus any constant. तो इंटीग्रेशन फाइंड करने का मतलब किसी फंक्शन का वो फंक्शन निकालिए जिसका वो डेरिवेटिव है। तो यहाँ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट किसका डेरिवेटिव है? साइन इनवर्स एक्स प्लस एनी कांस्टेंट का। तो लेट अस जनरलाइज दिस। इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं और प्रिमिटिव भी। इफ डी बाई डी एक्स or some function fx is capital Fx, then integral of capital Fx with respect to x is this small fx plus c. इसको कोरिलेट कीजिए d by dx of say cos x is minus sin x। तो यहाँ मेरा fx cos x हुआ, कैपिटल fx माइनस साइन। तो इंटेग्रल ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स इज कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि माइनस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है? कॉस एक्स का। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन का इंटीग्रल कॉस एक्स होगा। तो हेयर दिस एफ एक्स इज इंटेग्रल ऑफ दिस कैपिटल एफ एक्स, इट इज नोन एज इंटेग्रल ऑफ कैपिटल एफ एक्स और एंटी डेरिवेटिव। So let us write few formulas. D by dx of x की power n is x की power n plus 1 upon n plus 1 is x की power n. डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 विल बी दिस, आप करके देख सकते हैं। तो आई विल से इंटेग्रल ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज xn प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का डेरिवेटिव x की पावर n है, तो x की पावर n का इंटीग्रल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होगा। हेयर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, अदरवाइज इट वॉन्ट बी डिफाइंड। इन जनरल d by dx of x is 1, d by dx of x is 1 और d by dx of x plus any constant is 1। x में मैं कोई कांस्टेंट जोड़ दूं, d by dx ऑफ x प्लस सी इज ऑल्सो 1। तो आई विल से इंटेग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज x एंड ऑफ कोर्स प्लस सी। 1 का इंटीग्रेशन x क्यों है? क्योंकि 1 किसका डेरिवेटिव है? x का। 1 किसका डेरिवेटिव है? x का। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। d by dx ऑफ sin x is cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x, क्योंकि cos x किसका डेरिवेटिव है? sin x का। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। सिमिलरली
डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स इज साइन एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आएगा तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स आएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स एंड ऑफ कोर्स प्लस सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, कॉस एक्स का नहीं है, ध्यान रखिए, माइनस कॉस एक्स का है। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज sec स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज sec स्क्वायर एक्स। तो जब मुझे sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो वो फंक्शन ढूंढना है। फाइंडिंग इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स मीन्स आई हैव टू फाइंड दैट फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, tan x का। नॉट ओनली tan x बट इट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस एनी कांस्टेंट। नाउ विल टेक another fourth one, d by dx of cot x, तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स आएगा, माइनस cot x का डेरिवेटिव करेंगे तो cosec स्क्वायर एक्स आएगा, तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस cot x प्लस सी। बिकॉज cosec स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉट का। कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, तो माइनस कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसलिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये हो गया। इसके अलावा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स है, तो सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रल है वो सेक एक्स हो जाएगा। तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन का मीनिंग वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स है, तो दैट फंक्शन इज सेक एक्स। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉसेक एक्स इज कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अगर मैं cosec x का लिखूंगा तो ये आएगा माइनस cosec x cot x, तो यहाँ पे माइनस लगा दो तो ये प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x इज माइनस cos x एंड ऑफ कोर्स प्लस c, क्योंकि अगर मैं माइनस cos x प्लस c का भी डेरिवेटिव लेता तो यही आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स इज 1 बाई एक्स, ये आप करके देख सकते हैं। तो आई विल से 1 बाई एक्स का इंटीग्रल जो है लॉग मॉड एक्स प्लस सी होगा। नाइन्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स प्लस सी। इसी का एक्सटेंशन है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इज ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो अगर मैं यहाँ अपॉन लॉग ए कर देता हूँ तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हुआ ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। इसके बाद देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का ये डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स
इज माइनस, तो अगर मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी आल्सो। तो हम यही इसमें रखते हैं, जब भी दो मेथड से हम इंटीग्रेशन करते हैं तो दोनों देखने में डिफरेंट होंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो इनमें सिर्फ कांस्टेंट का अंतर आएगा, उसको हम बाद में समझेंगे। 13th, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डेरिवेटिव माइनस कॉट इनवर्स x का भी है, माइनस कॉट इनवर्स x का भी डेरिवेटिव यही है। तो मैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन को लिख सकता हूँ आइदर tan इनवर्स x प्लस सी और माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। तो दोनों का इंटीग्रेशन ही हो जाएगा, क्योंकि ये इसका भी डेरिवेटिव है, इसका भी डेरिवेटिव है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स अगर करेंगे, अब लॉग साइन एक्स का जैसे करते हैं वैसे ही लॉग मॉड साइन एक्स का होगा, ये कॉट एक्स होगा। इसको हम बाकी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आगे प्रूव करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इज लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, और आप कह सकते हैं डी बाई डी एक्स, ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, कॉस एक्स की पावर -1 मीन्स 1 बाई कॉस एक्स, तो लॉग मॉड सेक एक्स इज tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। इसको हम एज ए क्वेश्चन भी करेंगे, तो माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि दोनों का डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये भी होगा और ये भी होगा। और कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसको प्रूफ करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, ये किसका डेरिवेटिव है? ये इसका डेरिवेटिव लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। इसको हम एज ए क्वेश्चन भी करेंगे। इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डेरिवेटिव है लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये है। अब कुछ रूल्स है, कुछ बेसिक रूल्स। इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट टाइम्स ए फंक्शन, तो इसमें कांस्टेंट आउटसाइड आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और माइनस के केस में माइनस आ जाएगा। और इसी का एक्सटेंशन है ए एफ एक्स, और दूसरे फंक्शन के साथ बी है बी जी एक्स। इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट कांस्टेंट आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव, देन बी आउटसाइड जी का इंटीग्रेशन। प्रोडक्ट के लिए ये रूल नहीं होता, आगे हम पढ़ेंगे। तो अब ये कुछ रूल्स हैं और कुछ फॉर्मूलाज है, इसको अप्लाई करके हम इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। पहले एक्सरसाइज में वन सेट ऑफ क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन, यूजिंग डेरिवेटिव फैक्ट फाइंड द इंटीग्रेशन। यूजिंग
डेरिवेटिव फैक्ट फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, साइन 2x ई रेज टू पावर 2x और यू कैन से ई की पावर 3x और सेक स्क्वायर 1 माइनस 2x। अब साइन 2x किसका डेरिवेटिव है, तो थोड़ा सा ये हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं। साइन 2x मुझे पता है कॉस 2x के डेरिवेटिव में आएगा, तो कॉस 2x का डेरिवेटिव इज -2 साइन 2x। कॉस 2x का डेरिवेटिव है -2 साइन 2x, लेकिन मुझे तो पता करना है साइन 2x किसका डेरिवेटिव है, तो -2 से डिवाइड कर दो, तो -1/2 d/dx ऑफ cos 2x इज साइन 2x। तो साइन 2x इसके बराबर आ गया। अब ये -1/2 को हम इनसाइड ले जा सकते हैं, तो d/dx ऑफ -1/2 cos 2x इज साइन 2x। तो साइन 2x किसका डेरिवेटिव हुआ, इसका। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x dx इज -1/2 cos 2x प्लस c, क्योंकि साइन 2x किसका डेरिवेटिव है, -12 cos 2x का, और प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिमिलरली विल टेक e की पावर 3x। So you will see d/dx of e की पावर 3x is 3e3x। तो मैं इस 3 को यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पे 1/3 कर दूँ, तो इसका डेरिवेटिव ही आएगा। तो e की पावर 3x किसका डेरिवेटिव हुआ, 1/3 e की पावर 3x, ऑफ कोर्स प्लस c। तो e की पावर 3x इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन ये हुआ। सिमिलरली थर्ड पार्ट d/dx ऑफ, अब sec स्क्वायर 1 माइनस 2x किसके डेरिवेटिव में आएगा, tan में ही आएगा, tan 1 माइनस 2x। ये डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर 1 माइनस 2x इंटू -1/2 इंटू -2 के साथ। तो अगर मैं d/dx और यहाँ -1/2 tan 1 माइनस 2x ले लेता हूँ, इस -2 को यहाँ लगा दीजिए, 1/2 हो जाएगा, -1/2 इसको फिर अंदर ले जाओ। तो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो हमारे पास sec स्क्वायर 1 माइनस 2x आएगा। तो sec स्क्वायर 1 माइनस 2x किसका डेरिवेटिव हुआ, -12 tan 1 माइनस 2x का, प्लस c। C is the constant of integration। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन। Here I can say एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स का, क्योंकि जब सम का इंटीग्रेशन निकालना होता है दोनों को अलग अलग करके लिख दीजिए। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन मैंने बताया था, x की पावर रेज, x की पावर एक पावर इंक्रीज कर दो और फिर इससे डिवाइड कर दो, तो x की पावर 2 + 1 3 हो जाएगा अपॉन 3। और साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, रिमेंबर माइनस कॉस एक्स का। यहाँ बड़ी गलती होती है, कॉस एक्स हम डेरिवेटिव नहीं लिख रहे, इंटीग्रेशन लिख रहे हैं। मतलब साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, कॉस एक्स का नहीं है, माइनस कॉस एक्स का है, प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, d/dx ऑफ x प्लस 1/x, सॉरी, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1/x होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको सीधा तो ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको एक्सपेंड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो इट सिंप्लीफाइज टू एक्स स्क्वायर
और मैं इसका इंटीग्रेशन अलग लिख दूंगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर 1/x² मीन्स x की पावर -2 dx, फिर ये x कैंसिल हो गया 2 dx, तो 2 बाहर आ जाएगा dx। अभी हमने x स्क्वायर का लिखा है x³ 3, x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, यहाँ हो जाएगा x की पावर -2 + 1, तो इसको सीधा -1 लिख दीजिए अपॉन -1, एक पावर इंक्रीज कर दो तो -2 + 1 इज -1, और 2 इसको 1 dx पढ़ सकते हैं, तो 1 किसका डेरिवेटिव है x का, प्लस सी, इसका भी एक कांस्टेंट आएगा, इसका भी एक कांस्टेंट आएगा, इसका भी एक कांस्टेंट आएगा, तो तीनों कांस्टेंट मर्ज करके इकट्ठा लिख सकते हैं प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ √x प्लस x का होल स्क्वायर, तो a² x हो जाएगा x dx, फिर b² इज x², उसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, फिर 2ab, 2 में बाहर लिख देता हूँ x इंटू √x, तो ये 1 पावर है, ये हाफ पावर है, तो 1 और हाफ 3/2, तो अब हम x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे 1 पावर है, तो 1 + 1 2 x²/2, x² का x की पावर 2 + 1 मीन्स 3/3, 2 यहाँ पे हो जाएगा 3/2 + 1 5/2, तो x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, और कांस्टेंट इकट्ठा लिख देंगे हम, सिंप्लीफाई कीजिए x²/2 x³ 3, ये 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 x की पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस c। So this is how we can do these simple questions. Let us take more questions. 1 upon sin² x cos² x, तो इसका तो हमने डायरेक्ट कुछ करा नहीं है, तो 1 को we can recognize as cos² x plus sin² x, or you can write sin² x plus cos² x upon sin² x into cos² x। अब इसको सेपरेट कीजिए, cos² x अपॉन दिस होल, तो cos² कैंसिल होगा, 1/sin² इज cosec² x, फिर sin² कैंसिल होगा, 1/cos² इज sec², तो दोनों को अलग अलग करके फिर इंटीग्रेशन लिख देंगे। ये वाला स्टेप शो करने के एग्जाम में जरूरत नहीं होगी, फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, cosec² इज डेरिवेटिव ऑफ -cot x, डेरिवेटिव याद है तो आधे फॉर्मूले वैसे ही याद हो जाएंगे, cot x का डेरिवेटिव cosec² माइनस में होता है, तो -cot का डेरिवेटिव प्लस cosec² होगा, sec² इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x होगा। अब इसी के पैरेलल क्वेश्चन है cos 2x अपॉन cos² x sin² x dx, तो cos 2x को मैं लिख सकता हूं cos² x माइनस sin² x अपॉन cos² x sin² x। Now you can see here it is plus, here it is minus, so you can proceed in the same manner. So you can complete this question. Integration of tan x plus cot x whole square with respect to x, so we'll write tan² x plus cot² x, फिर 2ab, 2 into tan x into cot x, tan x cot x। अब ये तो 2 हो जाएगा, tan x into cot x आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब tan² x का हमें नहीं पता, हमने पढ़ा sec² x, हमें पता है sec² x इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो sec² का इंटीग्रेशन tan x है, तो tan² x को हम लिखेंगे sec² x माइनस 1 एंड cot² x को लिखेंगे cosec² x माइनस 1, तो हमारा ये -1 प्लस 2 कट गया, तो वी आर लेफ्ट विथ sec² x देन cosec² x, और इनके हमें फॉर्मूला पता है sec² x
tan x का डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन tan x होगा, ये माइनस cot x का डेरिवेटिव बनेगा तो इसका इंटीग्रेशन माइनस cot x होगा, प्लस एक और क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स। तो इसको हम रीराइट कर सकते हैं, ये cos स्क्वायर हो जाएगा नीचे आके, sec cosec स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा sin स्क्वायर एक्स, तो दिस इज tan स्क्वायर एक्स dx। अब tan स्क्वायर का मैंने पहले ही बताया, हमें डायरेक्ट नहीं पता, तो sec स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं। अब इसको मैं कह सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx -1 dx। 1 तो x का डेरिवेटिव होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ tan x। सो दिस इज द रिजल्ट। सो I've tried to explain what is the integration and we discussed few results on integration, और integration का हमने based कुछ few questions लिए। Now you can try exercise 7.1। तो आप exercise 7.1 को कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। इस नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 पूरी करेंगे, उसके बाद हम कुछ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह है वो डिस्कस करेंगे, एंड वील कंटिन्यू दिस चैप्टर। आई होप यू विल एंजॉय डूइंग इंटीग्रेशन विद मी।